وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو بزرگوں، قابل قدر علماء نظام، حفاظ قرآن، طلبہ عزیز، ملت اسلامیہ کے بزرگوں، جوانوں اور پردہ نشین ہماری ماں اور بہن، یقیناً رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا ہے. دیر گئے رات بیان سنے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے تو خدا کی نظر میں ہم سب مجرم ٹھہریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز فجر تکبیر اولا سے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 500 سال بعد دنیا اپنا نقشہ بدل چکی تھی. شرک اور کفر پنپ رہا تھا. ضلالت اور جہالت شہرۂ آفاق پر تھی. پوری دنیا کے سروں پہ منڈلا رہی تھی. انسانیت دم توڑ چکی تھی. حیوانیت کا بول بالا تھا. ظلم و تشدد، زیادتی، بالخصوص عورت کی صنف نازک پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جا رہا تھا. بیوہ عورتوں کو مال غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا تھا، یا پھر اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی نظر آتش کر دیا جاتا تھا. چلتے سواریوں کو نیزے مار کر اونٹ بکریوں کو ان کا خون چاٹ لیا جاتا تھا. تیر اندازی کے شوق میں غلاموں کو راستوں پہ کھڑا کیا جاتا اور ان کی آنکھ کی پتلی میں تیر مارنے کا انعام رکھا جاتا تھا. اور پھر تیر چلتے تھے، آنکھ کی پتلی غلام کی پھوٹتی اور وہ ادھر جان دے رہا ہوتا تڑپ کر، اور اس کے انعام میں شراب اونڈھیلی جا رہی ہوتی تھی، شراب پی جا رہی ہوتی تھی. شراب عام تھی، زنا عام تھا، جھوٹ عام تھا، سود عام تھا، دغا اور دھوکہ عام ہو چکا تھا. انسانیت دم توڑ چکی تھی. حیوانیت پوری کی پوری چھائی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب زمانے میں کوئی ہے نہیں جو انسانیت کو سہارا دے سکے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا، اس کی بیوی زندہ ہوتی، تو بیٹے سے کہا جاتا تھا میراث کے طور پر اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے. دنیا کی آنکھوں نے کبھی اتنا برا زمانہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب بھی دنیا تڑپ رہی ہوتی ہے، سسکیاں بھر رہی ہوتی ہے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ دنیا کے اندر صنف نازک اپنی آہیں بھرتی ہے، بند کمروں میں روتی اور چیختی چلاتی ہے، جب کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے خدا انقلاب نازل فرما دیتا ہے. وہ وقت انقلاب کا آ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب زمانے میں کوئی زبردست تبدیلی آنے والی ہے، اور اس تبدیلی کے انتظار میں دنیا کی ساری قومیں تھی کہ اب کوئی تبدیلی آنے والی ہے. اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا. جو دیندار لوگ تھے، سمجھدار تھے، جن میں انسانیت باقی تھی، وہ گوشوں میں تھے، خلوت نشی تھے، غاروں میں تھے، اور وہ علامات جو انہوں نے توریت، زبور، انجیل میں پڑھ رکھی تھی، وہ ان نشانیوں کے انتظار میں تھے کہ اب شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. وہ سرخ ستارہ بھی ٹوٹ چکا تھا
جس کا انتظار تھا، اور یہ بشارت توریت و زبور اور انجیل میں دی گئی تھی، اور عرب میں اس وقت یہ اعلان ہوا کہ جاؤ دیکھو کہ شاید محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہوں۔ اس وقت ملک عرب میں اور پورے ملک عرب کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت رکھے جا چکے تھے، ان کی پوجا کی جا رہی تھی، کعبے کے بجائے بتوں کا طواف کعبے میں ہوا کرتا تھا۔ ایسے ارتداد اور شرک کے زمانے میں ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا۔ اس زمانے میں ایک بچہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا، اس بچے کے سر کے بال تھوڑے سے سفید تھے، لوگوں نے کہا یہ شیبہ ہے۔ شیبہ عربی زبان میں بوڑھے کو کہتے ہیں، شیبہ۔ پیدا ہوا بچے کو شیبہ کا نام دیا گیا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا اس کا باپ انتقال کر چکا تھا، یہ بچہ یتیم ہوا، اس کی ماں مدینہ کی تھی، بچے کو مدینہ لے جایا گیا اور وہ مدینہ میں پلنے لگا، بڑا ہوا۔ کچھ زمانے کے بعد ایک شخص مکہ مکرمہ سے حارثی نام کا ایک شخص مدینہ گیا، اور اس نے دیکھا کہ کچھ بچے مدینے میں کھیل رہے اور وہ تیر اندازی اپنے شوق کے مارے کر رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ان لوگوں میں، ان بچوں میں ایک بچہ تیر برابر ٹارگٹ پہ لگاتا تھا اور اس کا تیر کامیاب ہوتا تھا۔ جب تیر کامیاب ہوتا وہ خود کو شاباشی دے رہا ہوتا اور یہ کہتا کہ میں اہل قریش سے ہوں اور قریش کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے، ہم بہادر قوم سے ہیں۔ حارثی کو یہ بچہ بڑا بھایا، اس کی نظروں میں اور اس کے دل کو بھایا۔ اس نے کہا بھئی یہ کون بچہ ہے، اس کا پتہ چلاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ مکہ کا یتیم ہے، مدینے آیا ہوا ہے، اس کی ماں مدینے میں رہتی ہے۔ کہ مکہ میں کس کا ہے؟ یہ مطلب کا بھتیجا ہے، یہ مطلب کا بھتیجا ہے۔ حارث سے نہ رہا گیا، وہ مکہ آیا، اس نے مطلب سے کہا جاؤ اپنے بھتیجے کو مدینے سے لے آؤ، قریش قبیلے کو سردار کی ضرورت ہے۔ میں نے اس بچے میں سرداری دیکھی ہے، میں نے اس بچے میں بہادری دیکھی ہے، میں نے اس میں قیادت کو دیکھا ہے۔ اگر تم نے اس بچے کو نہ لایا، اس کی مدینے میں پرورش نہیں ہو پائے گی، اس کو مکے کی ضرورت ہے اور مکہ کو اس کی ضرورت ہے۔ جاؤ اور بچے کو مکہ لے آؤ۔ میں نے اتنا ابھارا، حارثی کہتے ہیں میں نے مطلب کو ابھارا، اتنا ابھارا کہ وہ مجبور ہوئے، وہ گئے مدینہ جا کر اس کی ماں سے کہا بچہ میرے حوالے کر دو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے خاندان کا یتیم ہے، یہ ہمارا وارث ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ ماں نے بڑی مجبور ہو کر کے مطلب کے سپرد کیا۔ مطلب نے اس کو بیٹھایا اپنی سواری پر اور چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا من ھذا الطفل، یہ بچہ کون ہے؟ من ھذا الفتى، یہ نوجوان کون ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے، قافلے والوں نے دیکھا لگتا ہے مطلب کا غلام ہے، لگتا ہے مطلب کا غلام ہے، اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ یہ کہا یہ عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ اس بچے کو لے کر حارثی کہتے ہیں مطلب مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد اب یہ بچہ بڑا ہوا، سارے مکہ والے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی اداؤں پہ قربان ہو رہے ہیں۔ یہی مطلب ایک دن خواب دیکھتا ہے، یہ اللہ کا کرنا۔ مطلب نے خواب دیکھا زمزم کا کنواں جس کو دو قبیلے نے لڑ کر، قبیلے بنو عمالقہ اور جرہم قبیلوں نے لڑ کر زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا۔ مطلب نے دیکھا خواب میں کہ زمزم کے فوارے پھوٹے، کنواں جاری ہو گیا ہے۔ مطلب صبح اٹھے اور کدال لی، زمزم کا کنواں کھودنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ برس گزر گئے، صدیاں گزر گئی، یہ کنواں کھلنے والا نہیں۔ مطلب نے کہا، عبد المطلب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ عرب خواب کو بہت مانتے تھے، پورا قبیلہ پیچھے آیا اور خدا کا کرنا وہ زمانے کا بند زمزم جاری ہوا۔ جیسے ہی زمزم جاری ہو گیا، قریش کی زبان پر آیا سیدنا عبد المطلب، ہمارا سردار ہے عبد المطلب، ہمارا سردار ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب سردار بنے اور پھر عبد المطلب مشقتوں سے گزر رہے۔ خدا کا قانون ہے، یاد رکھنا، خدا کا قانون ہے جب انسان کو یا خاندان کو یا کسی قبیلے کو یا کسی قوم کو اللہ آزمائشات میں مبتلا کرتا ہے تو ان آزمائشات کے بعد امامت عطا کر دیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم
इब्राहिम को आजमाइशात में डाला, उनके इम्तिहानात लिए। इब्राहिम थोड़ी देर के लिए परेशान नजर आए, अल्लाह ने तसल्ली दी, इन्ना जाइलुका लिन्नासी इमामा, चंद दिन की मशक्कतें बर्दाश्त कर ले, हम तुझे इमाम बनाने वाले हैं। मुत्तलिब पर आजमाइशें शुरू हो गई, अल्लाह ताला ने आजमाया, यतीमी के जमाने से गुजरे, मक्का से मदीना ले जाए गए, मदीना से मक्का आए तो लोगों ने आपको मुत्तलिब के गुलाम का नाम दे दिया। आपके घर बच्चे पैदा होने शुरू हुए, निकाह हुआ अब्दुल मुत्तलिब का, औलाद हुई, 10 बेटे हुए। मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी, मेरे 10 बेटे होंगे, एक अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, क्योंकि मेरे बाप इब्राहिम ने भी कुर्बानी औलाद की दी थी, मैं भी अपनी औलाद की कुर्बानी दूंगा। मुत्तलिब ने कहा मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। खुदा का करना के 10 बेटे, 10वें बेटे हुए अब्दुल्लाह, 10वें बेटे हुए अब्दुल्लाह। मुत्तलिब ने कहा कुरा डालो, जिस बेटे का नाम आएगा उसको चढ़ा दूंगा भेंट खुदा की दरबार में। नाम खुदा का करना अब्दुल्लाह का आया, का फिर डालो, फिर अब्दुल्लाह का नाम, फिर डालो, फिर अब्दुल्लाह का नाम। अब्दुल्लाह नन्हा है, मासूम है, छोटा है, सबसे ज्यादा प्यारा है, लफ्ते जिगर है, नूरे नजर है, मैं इसको कैसे कुर्बान करूं? किसी ने कहा अब्दुल्लाह को एक तरफ, 10 ऊंटों को एक तरफ रखो, कुरान अंदाजी करो, 10 ऊंट का नाम आया तो उनको जुबा कर दो, अब्दुल्लाह बच जाएंगे। कुरान अंदाजी हुई, लेकिन 10 ऊंट का नाम नहीं आया, फिर अब्दुल्लाह का नाम आया। 20 ऊंट, फिर अब्दुल्लाह का नाम, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊंट के बाद नाम ऊंटों का आया, अब्दुल्लाह की जान बची। अल्लाह ने फरमा दिया ये कोई मामूली अब्दुल्लाह नहीं है, एक जान नहीं 100 जाने इसमें कुर्बान, 100 जाने इसमें कुर्बान। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वालिद बुजुर्गवार अब्दुल्लाह हैं, 100 जाने इन पर कुर्बान कर दिए गए ऊंट, और फिर अब्दुल्लाह की जान बची। ये अब्दुल्लाह जवान हुए, मक्का की गलियों में फिर रहे हैं, मक्का की गलियों में यहूदन फातिमा है, वो फातिमा देखती है ये अब्दुल्लाह की पेशानी में एक नूर चमकता नजर आ रहा है। वो समझ गई थी कि तौरात और इंजील में जिस नूर का तज़किरा है वो अब्दुल्लाह की पेशानी में है। फातिमा ने कहा अब्दुल्लाह मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। वो जानती थी कि ये नूर जिस पेट में जाएगा उस पेट से मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आएगा, मुझसे निकाह कर ले। अब्दुल्लाह ने कहा कि ना, मेरा निकाह का कोई इरादा नहीं है, मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकता। तो अब फातिमा कहने लगी अब्दुल्लाह निकाह नहीं कर सकता तो मेरे साथ जिना ही कर ले। अब्दुल्लाह ने कहा खुदा की कसम मेरी पूरी बाप दादाओं की नस्ल में किसी ने जिना नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद आपने फरमाया मेरे ऊपर पीढ़ियों में और आगे भी अल्लाह सलामत रखे क़यामत तक, हुजूर ने फरमाया किसी ने जिना नहीं किया। अब्दुल्लाह ने कहा मैं नहीं कहा, मैं जिना भी नहीं कर सकता। बात आई गई हो गई। चंद दिनों बाद आप मदीना तशरीफ लाए। मदीने में कबीले बनु ज़ुहरा की एक खातून थी, इंतहाई अक्लमंद, इंतहाई बाअखलाक, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बाअदब खातून, जिनको आमिना के नाम से जाना जाता था। अब्दुल्लाह का निकाह उनसे हुआ। बहुत लंबी चौड़ी उम्र नहीं, 18 साल की उम्र में आमिना से निकाह हुआ। और फिर आप चंद दिनों बाद वही उसी तरह मक्का की गलियों में उस फातिमा यहूदन को नजर आए और उसने कहा कि अब्दुल्लाह चंद दिनों पहले तुम यहाँ से गुजर रहे थे, तुम्हारी पेशानी में एक नूर नजर आता था, आज वो नूर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि वो नूर अब्दुल्लाह की पेशानी से आमिना के बतन मुबारक में मुंतकिल हो चुका था। वो नूर आमिना के वतन मुबारक में मुंतकिल हो चुका था। और फिर चंद दिनों के बाद आमिना फरमाती है मेरे पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुबारक को जागुज़ी फरमाया। मैं दुनिया में अजब अजब मंजर देख रही थी। मैंने देखा कि आसमान के सितारे मेरी तरफ झुक रहे हैं, मैं जहां से गुजरती दरख्त झुककर मुझे सलाम करते थे। मैं गर्मा में निकलती थी तो धूप के अंदर बादल मुझे साया करते थे और मेरे साये को लेने के लिए मक्के की और औरतें मेरे करीब आ जाती थी। आमिना तुम जिधर को जाती हो उधर साया होता है, और क्यों ना हो जो बतन मुबारक में है वो हस्ती है जिसको अर्श का साया नसीब है और जिसके साये में पूरी कायनात रहमत की आगोश में पल रही है और क़यामत तक पलती रहेगी। आमिना फरमाती है उससे बढ़कर एक अजीब वाक़िया होता। मैं जमजम के कुएं पर जाती पानी लेने के लिए, पानी का वाटर
वाटर लेवल नीचे हुआ करता था, मैं जैसे ही जमजम के कुएं के करीब जाती वाटर लेवल ऊपर हो जाता था, जमजम ऊपर आ जाता था। और जब मैं चली जाती जमजम फिर नीचे जाता। मक्का के औरतें कहती आमिना तू यहीं ठहरा कर, तेरे ठहरने से कुआं ऊपर आ जाता है, प्यासों की प्यास आसानी से बुझ जाती है, तू जाती है पानी नीचे चला जाता है। आमिना फरमाती मैं ठहरी रहती और औरतें अपने प्याले भर लेती, अपने बर्तन भर लेती, उसके बाद मैं वहां से जाया करती थी। हुआ यह कि खुदा का करना, अब्दुल्लाह का उनके शाम का सफर तिजारत आ निकला। अब्दुल्लाह जाने लगे और जब कोई ऐसे आलम में नया नवेला दुल्हा अपनी बीवी को हालत हमल में छोड़कर जाए, उस वक्त बेगम से पूछना दिल पर क्या गुजरती है। खुदा के जियाले ही, खुदा के शहदाई ही, खुदा के महबूब बंदे ही कुर्बानियां दिया करते हैं। अब्दुल्लाह जाने लगे मुल्क शाम की तिजारत के काफिले की तरफ, तो आमिना ने कहा जी अभी तो निकाह हुआ है, कुछ दिन साथ तो गुजार लो, साथ रह लेंगे। अब्दुल्लाह ने कहा आमिना सफर जरूरी है, कुछ दिनों की बात है, फिर लौट आ जाऊंगा, घंटी बजेगी सफर से आने वालों की तो मैं तुझसे मुलाकात के लिए आऊंगा, तुम मुझसे मिलने को चौखट से निकल आना। ये कहकर अब्दुल्ला अपनी घरवाली को वसीयत फरमाते हैं और उसके बाद मुल्क शाम के सफर को जाते हैं। खुदा को कुछ और मंजूर था, मुल्क शाम से काफिला लौटा, मक्के के अंदर घंटी बजी कि काफिला लौट आया है, एक रिवाज था घंटी बजाने का, काफिला लौट आया है। लेकिन आमिना दौड़ी हुई जब सहन की तरफ दौड़ी है, पूछा कि अब्दुल्ला भी आए या नहीं। लोगों ने कहा ना अब्दुल्ला नहीं आ सके, वो बीमार हो गए हैं, दरमियान में मदीने में रुक गए हैं। आमिना ने कहा कुछ लोगों को भेजो वो अब्दुल्ला का हाल पूछें। मालूम हुआ कि वो बीमार हैं, मालूम हुआ वो बीमार हैं। लोग ले जाने लाने के लिए जब गए, खबर ये पहुंचने से पहले, मदीना पहुंचने से पहले खबर पहुंची है अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो गए, अब्दुल्ला अल्लाह के प्यारे हो गए। और अल्लाह ने बता दिया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दाल्लन फहदा। अल्लाह ताला ने बताया मोहम्मद तुम यतीम हो गए, हमने तुमको सहारा दिया, हमने तुमको सहारा दिया। आमिना कहती है मेरी जान में जान न रही, मैं फूट कर रोने लगी, है काश मेरे लाल का चेहरा देखकर ही अब्दुल्ला गए होते, इस लाल का चेहरा देखकर ही अब्दुल्ला गए होते। खुदा का करना ऐसा कि अब वो बच्चा दुनिया में आने को है और इधर वो सितारा टूटा, उधर मुल्क शाम में यहूदियों की मजलिस लगी है। देखो कोई हमारे मुल्क के अंदर हामिला औरत है क्या? ऐसा लगता है नबी आखिर ज़मा दुनिया में आ चुके हैं। किसके घर बच्चा पैदा हुआ कहीं से खबर नहीं लगी। एक मुसाफिर मक्के से लौटा था मुल्क शाम, उसने कहा है ऐ बनी इसराइल रो अपनी किस्मत पे, रो अपनी किस्मत पे। नबूवत बनी इसहाक से बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। अब तक इस हजरत इसहाक इब्राहिम के बेटे इसहाक उनकी औलाद में नबूवत थी, फरमाया अब वो नबूवत इसहाक के बजाय इस्माइल की औलाद में मुंतकिल हुई। मक्के में वो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी पैदा हुआ। आपका दुनिया में आना था। फारस में जल रही हजारों साल से एक आग जिसकी दुनिया पूजा कर रही थी, वो आग बुझ गई। खुदा ने पैगाम दिया, मुशरिकों का जमाना गया, तौहीद का जमाना आ गया, वहीद का जमाना आ गया। काबे के बुत पौधे मुंह जमीन पर गिर गए। अल्लाह ने बता दिया अब शिर्क खत्म है और ईमान का बोलबाला है। अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया में आ चुका है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए। आमिना कहती है दुनिया में बच्चे आते हैं, उनको लिटाया जाता है। मैंने भी अपने बच्चे को, अपने लाल को, अपने प्यारे को लिटाने का इरादा किया। क्या वो लेटता? और बच्चे जमीन से चित लेट जाते हैं। हमने बच्चे भला कहां करवट बदलते हैं, मगर ये बच्चा अजीब था। जब मैंने उसको लिटाने का इरादा किया, ये 1 दिन का बच्चा है, ये बच्चे को मैंने लिटाने का इरादा किया, ये फौरन सजदे में गिर गया और कायनात को बता दिया ये खुदा का बंदा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जिसको अल्लाह ने मेराज के सफर में अब्द कहकर पुकारा है, बंदा कहकर पुकारा है। ये खुदा की बारगाह में सजदा रेज हो गया।
خدا کی بارگاہ میں یہ بندہ سجدے میں پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد آمینہ فرماتی ہیں میں نے عجب عجب منظر دیکھے، یہ بچے کو جب یہ دنیا کے اندر آیا، اور وہ سارے قصے مختلف معجزات و کرامات کا تذکرہ ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ مکہ المکرمہ میں رواج تھا، بچوں کو اونچے خاندانوں میں، اونچے قبائل میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی کہ یہ بچہ معصوم بچہ، یہ یتیم بچہ، یہ عبداللہ کا بر یتیم، وہاں سے قبیلے بنو سعد کی عورتیں بچے لینے کے لیے آئیں، سب نے مالداروں کے دروازے پکڑے اور اٹھا کر ان بچوں کو لے جانے لگی۔ ایک بندی خدا کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں گھومتی ہیں، کوئی بچہ نہیں ملا۔ اچانک کسی نے کہا عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم ہے، دیکھو شاید تم کو وہ پسند آ جائے، تمہارے کام آ جائے۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئی، آمینہ فرماتی ہے یہ ننھا بچے روتے ہیں، یہ بچہ سویا ہوا تھا، نیند سے جگا تو بھی روتے ہیں، یہ بچہ سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حلیمہ کہتی ہے میں دنیا بھر کے غم و غصوں میں تھی، میں دنیا بھر کی الجھنوں میں تھی، فکروں میں تھی، محمد کی مسکراہٹ نے میرے غموں کو آسان کر دیا، میرے غموں کا رخ بدل دیا۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر اپنے شوہر حارث کے پاس آئی۔ میں نے کہا میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں، میں اس بچے کو لے جانا، اب تو کوئی بچہ نہیں بچا مکے میں، یہی ایک بچہ بچا ہے، بچا نہیں بچایا گیا ہے۔ حلیمہ تیری قسمت کو جگایا گیا ہے، حلیمہ تیرے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھلوایا گیا ہے۔ حلیمہ نے گلے سے لگایا، اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا کیوں نہیں، ضرور ہم اس کو لیں گے، سیجعل اللہ لنا فیہ برکتا، اٹھا لے یہ بچہ، شاید اللہ اس کی وجہ سے تجھے برکتیں عطا فرمائے گا، شاید اللہ اس کی برکت سے تجھے برکتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی آنے والی قبیلے بنو سعد کی عورتوں نے مالداروں کو دیکھا، مالداروں کے مال کو دیکھا، جیب کو دیکھا، وہ جیب کی چند پھوٹی کھوڑیاں لے کر کے گئی، مگر حلیمہ نے دیکھا کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے۔ چنانچہ حلیمہ نے اسی بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اب چلنے لگی، اونٹنی پر سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ حلیمہ کہتی ہیں میرے شوہر آگے تھے اونٹنی چلانے کے لیے، بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں یعنی بیچ میں تھے، میں پیچھے تھی۔ میرے شوہر نے اونٹنی سے کہا اٹھ، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے دل میں ارادہ آیا، میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ پیچھے آؤ، میں آگے آتی ہوں۔ اب ترتیب بدل گئی، محمد آگے، آمینہ پیچھے، حارث اور بھی زیادہ پیچھے۔ تیسرے نمبر پر جب میں نے محمد کو آگے بٹھایا، اونٹنی کھڑی ہو گئی اور اونٹنی نے اپنے عمل سے بتایا جو امام بننے آیا ہے وہ مقتدی نہیں بن سکتا، جو امام بننے آیا وہ بلا مقتدی کیسے۔ اونٹنی کھڑی ہو گئی، میں لے کر کے چلنے لگی، میری اونٹنی سب سے پیچھے آئی تھی، کمزور تھی، جب واپس ہوئے تو میں سب سے آگے نکل گئی۔ میں گھر پہنچی، میری بکریاں بیمار ہو چکی تھی، محمد کی تشریف آوری ہوئی، میری بکریوں کے تھن بھر گئے، میری بکریاں خود سے صحت مند ہو گئی، میرے کھیت اجڑ گئے تھے، محمد کی آمد ہوئی، کھیت پھولے گلزار ہو گئے، اور جہاں جہاں محمد کو لے کر میں گزری وہ سارا ہی بنجر زمینیں سبزہ زار ہوتی چلی گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے یہ برکات میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ حلیمہ تو حلیمہ کی بہن شیمہ چند دنوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہوئے، شیمہ کہتی ہیں میں جب بھی بکریاں چرانے جاتی محمد بھائی کو ساتھ لے جاتی تھی، محمد بھائی کو جب ساتھ لے جاتی بکریاں بہت جلد چر کر کے واپس آتی تھی اور محمد کے چہرے مبارک کو دیکھتی بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بکریاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود محمد کو دیکھنے آتی، امی جان میرے ساتھ محمد کو روزانہ بھیجا کرنا، ان کی وجہ سے مجھے بکریاں چرانے میں بھی مشقت نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے بکریاں چرانے میں بھی 2 سال کا زمانہ ہوا۔ آمینہ کے پاس واپس لے کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی۔ آمینہ کے پاس گئی تو وہاں مکہ المکرمہ میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا،
बीमारी फैली थी। आमिना ने कहा इन्हें वापस हलीमा ले जाओ। कुछ दिनों फिर साथ में रखा, उसके बाद फिर आप आए, आमिना के सुपुर्द किया। आमिना को सफर मदीना लाहिक हुआ। आमिना अपने लख्ते जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गई। मदीना से वापसी हुई, मकाम अबवा पर रुकी हुई थी। अब होता क्या कि आमिना बीमार हो गई और आमिना के साथ एक उनके साथ उम्मे ऐमन उनकी बहन उनके साथ थी। आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार हो गई और उसी बीमारी में आप भी दुनिया से रुखसत हो गई। आप भी दुनिया से रुखसत हो गई। उम्मे ऐमन ने कुछ लोगों को बुलाया, आमिना को सुपुर्द खाक किया। अब ये जमाने का जो मंजर किसी जमीन और आसमान ने भी इसको शायद बर्दाश्त न किया। कब्र के हवाले जब किया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से लिपट गए, रोने लगे। अम्मा अब तो अब्बू भी न थे, आप भी न रही। अब मदीना मक्का जाऊं तो किसको अब्बू कहकर पुकारूं, किसको अम्मा कहकर पुकारूं। आपका साथ छूट गया, आप मुझे छोड़कर अकेली कब्र के सुपुर्द हो गई। और आमिना उम्मे ऐमन फरमाती हैं आमिना ने लख्त जिगर को मेरे सुपुर्द किया कि उम्मे ऐमन इसको उसके दादा के हवाले करना, और अपने लाल की पेशानी का बोसा दिया और ये कह रही थी आमिना कलिमात, खुदा की कसम ये मेरा लाल पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन करेगा, ये मेरा लाल दुनिया में नाम को रोशन करेगा, ये जमाने का इमाम होगा। उनको लेकर आप मक्का आई, अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। 4 साल का जमाना गुजरा, अब्दुल मुत्तलिब का भी सहारा छूटा नहीं, छुड़ाया गया और दुनिया को बताया गया जो कायनात को सहारा देने आया है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का यार है, ये अल्लाह का प्यारा है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। फिर अबू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी को सौंपा और उसको निभाया और 40 साल की उम्र हुई और 40 साल की उम्र तक अबू तालिब ने नबूवत तक भी और नबूवत के बाद भी अपनी सब कुछ जान माल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगरानी में और उनकी परवरिश में अपना सब कुछ लुटा दिया। 12 साल की उम्र में अबू तालिब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। दरमियान में एक राहिब पढ़ता था और एक राहिब पढ़ता था। उसने जब आपको देखा कहा अबू तालिब इस बच्चे को वापस ले जाओ, ये कायनात का सरकार है, ये नबियों का सरदार है, ये आखिरी नबी है। मुल्क शाम वाले यहूदी इसको देखेंगे, इसको कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे, वापस ले आओ। आप उनको वापस लेकर आए, आका को वापस लेकर आए और फिर वो 25 साल की उम्र की जवानी आपने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया और उस जमाने से लेकर नबूवत के मिलने तक का जमाना, नबी बनाए जाने तक का जमाना, आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो प्यारा जमाना है जिसमें आप जहां तिजारत फरमा रहे हैं वहीं मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं। और उन दोनों चीजों से बढ़कर आपके दिल में यह जज्बा था कि आप अल्लाह की मोहब्बत में खलवत नशीं हो जाते, गारे हिरा में जाकर के तशरीफ फरमा होते और वहां अल्लाह की याद फरमा रहे होते। 3-3 दिन का तोशा आप साथ ले जाते और वहीं रहा करते। ये तोशे का लफ्ज कहते हुए मैं दरमियान में बात कहता चलूं, हमारे तोशे हरदम ताजा रहते हैं। मोहम्मद का तोशा बासी रोटी हुआ करता था, आप उसको ले जाते, पानी आपके साथ होता या खजूरें होती, गार में तशरीफ फरमा होते। 3-3 दिन अल्लाह की याद में रहते। एक दिन ऐसा ही हुआ, मगरिब का वक्त था, आप लौट रहे थे, लौटने के लिए जब गार के दरवाजे से बाहर आए, अचानक एक नूर मुजस्सम आपके सामने रूनुमा हुआ, एक नूर मुजस्सम आपके सामने रूनुमा हुआ। उसने कहा इक़रा, पढ़। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने उस नूर मुजस्सम ने आपको पकड़ा, सीने से लगाया, भेजा, दबाया, फिर फरमाया इक़रा, अब पढ़। हुज़ूर ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर लगाया, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़
اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے ذریعے سے. اقرأ وربك الأكرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ پڑھایا جو انسان جانتا نہیں تھا. فرمایا محمد پڑھ. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیرت طیبہ اور آغاز کلام ربانی آپ کے جلسے کا عنوان ہے. یہاں سیرت طیبہ کا ایک گوشہ، سیرت وہ مضمون ہے، وہ دریائے ناپیدا کنار ہے. حضور کے آنے سے پہلے سے اس کا مضمون شروع ہو چکا، یعنی آدم سے شروع ہوا. آدم سے یہ سیرت کا عنوان شروع ہے، قیامت تک چلے گا اور قیامت کے بعد بھی نہیں رکے گا. قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش خدا کے تلے آپ سجدہ ریز ہوں گے اور پھر آپ ایک لمبا سجدہ فرمائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی تعریف کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کو کہا جائے گا ارفع رأسک اشفع تشفع سل تعطى، سر اٹھاؤ، جس کی سفارش کرنی ہے کرو، آپ کی سنی جائے گی. آج کے دن آپ کے علاوہ یہاں کسی کی نہیں سنی جانی ہے، کسی کی نہیں سنی جانی. آپ سر اٹھائیں گے اور آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے. کیا مانگیں گے؟ یہ سورۃ الضحیٰ نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قرآن کرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ فرماتے محمد ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں کل قیامت میں خدا کی بارگاہ میں ہوں گا، سجدہ ریز ہوں گا، سر اٹھایا جائے گا. سر اٹھا کر اپنی امت کی سفارش کروں گا، خدا سے کہوں گا تیرا وعدہ ہے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ جاوے میں راضی ہونے والا نہیں. اتنا دیا جائے گا. سیرت آدم کے پہلے سے شروع، آدم کے پہلے سے، آدم سے نہیں، آدم کے پہلے سے شروع. حضور فرما رہے خلقت وآدم بین الماء والطین، مجھے اس وقت پیدا کیا گیا جبکہ ابھی آدم کا گارا ہی تیار ہوا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ نے مجھے اس وقت پیدا فرمایا تھا. آپ بن چکے تھے کائنات کے اندر تیار. وہاں سے سیرت شروع ہے اور اس کے بعد کہاں ختم ہے؟ وہ میدان محشر میں، وہاں بھی ختم ہوئی. جنت میں جاؤ، جنت میں جانے کے بعد سب کی تیاریاں ہوئی. وہ آخری دن پھر اعلان، ایک دن اعلان ہوگا، ایک وقت اعلان ہوگا کائیں جنتی آ جاؤ سب. اب یہاں پر مہمان نوازی ہوگی. آج صدر جلسہ کوئی ہے، مہمان خصوصی کوئی ہے. کل عرش معلیٰ پر جنتیوں کے لیے دسترخوان سجے گا اور وہ اجلاس بلایا جائے گا. وہاں اللہ رب العزت صدر جلسہ ہوں گے، مہمان خصوصی محمد رسول اللہ ہوں گے. سیرت کو تو وہاں تک بیان، اب کسی کے بس میں کیا ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو بیان کر سکے؟ کسی کے بس میں کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاکیزہ بنایا. سچ تو یہ ہے جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا. یہ آپ کی شان میں کہا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آئی تھی، حضور کا چہرہ دیکھا، فرمایا خدا کی قسم میں نے قبیلہ بنو سعد میں ایسا بچہ نہیں دیکھا.
आमिना कहती है हलीमा तू कबीले बनो साद की बात कर रही है, मैं मक्का भी गई, मैं मक्का रहती हूँ, मदीना मेरी माँ का शहर है, मैंने मक्का मदीने में भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, करीब आ गए दादा जान और कहा ओ हलीमा ओ आमिना सुनो, तुमने मक्का और मदीना देखा है, मैंने मुल्क शाम देखा, मुल्क इराक देखा, हिजाज अरब देखा, मैं दुनिया के मुल्कों में फिरा हूँ, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। ख्याली बात है, जिब्रील होते तो कहते खुदा की कसम मैंने जमीन में नहीं देखा, आसमान में भी ऐसा नहीं देखा, और अगर वो कहते तो खुदा जरूर कहता जिब्रील तूने देखा नहीं मैंने बनाया नहीं, तूने देखा नहीं मैंने बनाया नहीं। अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील कहते हैं पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ तेरे रब के नाम से। कौन सा रब? जिसने यतीमी में तुझको सहारा दिया, जिसने बेकसी में तुझको सहारा दिया, जिसने तुझे अपना बना लिया, उस रब के नाम से पढ़। अल्लज़ी खलक़, जिसने इंसानों को पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, इंसान की ग़िज़ा मिट्टी से निकाली, ग़िज़ा को खाया, इंसान तो खून बन गया, खून से मनी का मादा पैदा हुआ, मनी के मादे से अल्लाह ने अलक़ा पैदा किया, जमे हुए खून माँ के रहम में बनाया, जमे हुए खून को अल्लाह ने मुज़ग़ा बनाया, मुज़ग़ा को अल्लाह ने कसौनल मुज़ग़, अल्लाह ताला ने मुज़ग़ा को इज़ामन बनाया, हड्डी बना दी, हड्डी पर अल्लाह ने सातवें मरहले में इंसान को अल्लाह ने गोश्त चढ़ाया, फिर खलक़नाहु खल्क़न आखर, अल्लाह ने फिर इंसानी शक्ल अता फरमाई। 7 मरहलों से गुजार कर जमीन भी साथ है, आसमान भी साथ है, हफ्ते के दिन भी साथ है, इंसान की तख्लीक के मरहले भी साथ है। 7 का अदद भी अल्लाह को बड़ा महबूब, ये एक मुस्तकिल उन्वान है, उसको फिर कभी इंशाअल्लाह। 7 मरहलों में अलक़ा को याद किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ऊपर के 3 नीचे के 3 छोड़ के दरमियान को याद किया, ताकि इंसान को याद रहे तेरे तमाम मराहिल अल्लाह ने गुजारे हैं। इंसान ये न कहे कि फलां की बरकत से बच्चा हुआ, फलां की दुआ से हुआ, तो गैर मुअस्सिर जरूर है, लेकिन किसी को कारसाज न समझो, किसी और के करने से कोई तुम्हारे घर में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, न किसी तीर से होगा, न किसी करने से होगा। अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ताला ने पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तुम्हारे दिल में ये खौफ है मैं उम्मी हूँ, मैंने पढ़ना नहीं सीखा, मैं कहाँ से पढ़ूं? अल्लाह ने कहा अल अकरम, करीम साहब तुझको पढ़ाएगी, पढ़ने के मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जवान बच्चा हूँ, मैं मासूम बच्चा हूँ, पढ़ लूंगा। जवानी में आया अब जबान नहीं पलटती है, बूढ़ा हो गया मेरी जबान कहां से पलटेगी? मोहम्मद को ऐसी उम्र में अल्लाह ने पढ़ाया, जवानों को समझाया मोहम्मद जवान है तुम भी पढ़ सकते हो, बूढ़ों को समझाया कि मोहम्मद बुढ़ापे की तरफ माइल है तुम भी पढ़ सकते हो। मदरसा रियाजुल उलूम सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ जवान भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, मदरसे जितने भी हैं वो औरतें भी पढ़ सकती हैं, जवान भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाएगा कौन? रब्बुकल अकरम, तुम्हारा करीम दाता तुम्हारी जबानों को जारी करेगा, तुम्हारे जहनों को खोल देगा, तुम्हारे सीनों को खोल देगा। शर्त यह है कि नबूवत से रिश्ते को मजबूत करो, और नबूवत से रिश्ता शुरुआत हो रही है। इक़रा, जमाने को जरूरत थी गुमराही से बचाने की, जमाने को जरूरत थी जुल्म से बचाने की, जमाने को जरूरत थी कुफ्र से बचाने की। आयात ईमान की पहले उतरना चाहिए, आयात हिदायत की पहले उतरनी चाहिए, आयात इंसाफ की पहले उतरनी चाहिए, आयात औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद को रोकने की पहले उतरनी चाहिए। अल्लाह ने इन आयात को नहीं उतारा तो ये उतारा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सारी जलालतें खत्म होंगी, कुफ्र निफाक मिट जाएगा, शिर्क और जलालत खत्म हो जाएगी। शर्त यह है पढ़ना शुरू करो, इल्म हासिल करो, इल्म के रास्ते से जलालतें खत्म है, सीरत
नबवी का, नबूवत का पहला दरवाजा खुला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की पहली आयत को उतारा, इक़रा फरमाया, पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, वो तुमको पढ़ाएगा। अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो करीम ज़ात जिसने कलम के जरिए पढ़ना सिखाया, कलम को जरिया बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कलम जरिया बना, यानी मोहम्मद तुमको पढ़ना हमने सिखाया, जिब्रील को जरिया बनाया। जिब्रील तो जरिया है, पढ़ना तो अल्लाह ने सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब पढ़ना सिखाया जो वो जानता नहीं था। नन्हे से बच्चों को किसने सिखाई सारी बातें? जवान को किसने सिखाया? वो इल्म जो तख्लीकी तौर पे, फितरी तौर पे वो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाया। कुरान मुक़द्दस की पहली वही हमें तरगीब दे रही है, पढ़ना सीखो, इक़रा, पहला पढ़ना बचपन का, फिर आगे फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, दूसरा पढ़ना जवानी का, फिर आगे फरमाया इक़रा, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तीन मर्तबा जिब्रील ने क्यों पढ़ाया? जमाने में तीन दौर गुजरते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में भी पढ़ना है, जवानी में भी पढ़ना है, बुढ़ापे में भी पढ़ना है, इसलिए 3 मर्तबा हुक्म दिया गया, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब लोग कहते हैं हमसे कहाँ पढ़ना होगा, हम जाएंगे 3 दिन कुछ सूरतें सीख कर आ जाएंगे और जाएंगे चिल्ले में कुछ सीख कर आ जाएंगे। थोड़ा मोटा नहीं है, आप पूरी उम्र पढ़ सकते हैं। सहाबा की बहुत बड़ी तादाद बुढ़ापे में आलिम कुरान बनी है, बुढ़ापे में हाफिज कुरान बनी है, एक बड़ी तादाद है। आप कह रहे होंगे मदरसे के बच्चों का जलसा, नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बच्चों का जलसा है, जिन जिनकी माँ ने जन्म दिया है। इल्म के मोहताज मैं और आप सब हैं। और याद रखें कि जमाने में इस वक्त मेरी और आपकी कौम जो पस्ताहाल हो चुकी है, जवाल की तरफ जा रही है, गुमराही की तरफ जा रही है, इर्तिदाद की तरफ जा रही है, माशी हालात से तंग होकर सारी कौमों की नजर से गिरती चली जा रही है। ये कौम जो सारी कौमों की इमाम थी, वो आज अपनी इमामत खो चुकी है। उसका सबब सिर्फ और सिर्फ ये है, हम इल्म के रास्ते से बहुत दूर हो चुके हैं। और इल्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ मजहब का इल्म हो। यहाँ इन आयात में जो इब्तदाई आयात है, अल्लाह ने नहीं कहा सिर्फ इस्लाम का इल्म पढ़ो, सिर्फ नमाज का इल्म पढ़ो, नहीं फरमाया। अल्लाह ने कहा सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब अल्लाह ने ये कहा पढ़ो, तो नबी ने बताया क्या पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाह मैं तुझसे नाफे इल्म मांगता हूँ। ये नहीं फरमाया अल्लाह मैं तुझसे दीन का इल्म मांगता हूँ, बल्कि फरमाया नाफे इल्म जो इंसान की दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। ऐसा इल्म पढ़िए, डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए और बनाइए, और फिर उसके साथ साथ पक्के दीनदार भी बन जाइए। मसाइल का इल्म भी हासिल कीजिए। हर जमाने में, नबी के जमाने में भी ये उलूम थे, आज भी है, क़यामत तक आएंगे। हाँ, लेकिन याद रखना, दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, पेट के लिए नहीं पढ़ने हैं, दुनियादारी के लिए नहीं पढ़ने। ये सारे उलूम कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मजहब इस्लाम के मानने वाले हर जमाने में इमाम थे और इंशाअल्लाह क़यामत तक इमाम रहेंगे। एक जमाने से हमारी कौम के अंदर में गिरावट आती चली गई। उन्होंने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया। ये वजारत तालीम की रिपोर्ट है कि 70% बच्चे 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं और 30% बच्चे पढ़ लेते हैं। उनमें से भी 3% बच्चे हमारी कौम के वो होते हैं जो नौकरी चाकरी में लग जाते हैं। इसके अलावा का तो सब सत्यानाश हो जाता है। छोटी नजर, छोटी सोच लेकर के माँ बाप बैठे, अपनी सोच में उसात पैदा करो, अपनी सोच में उसात पैदा करो, इसलिए कि कुरान करीम में जमीन और आसमान की और दरियाओं की उसात है। ये उसात इंशाअल्लाह हमारी कौम को कामयाबी के रास्ते पर डालेगी। इरादे करो, हम अपने औलादों को इंशाअल्लाह इंजीनियर प्लस आलिम दीन बनाएंगे, डॉक्टर प्लस हाफिज कुरान बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बैठे हजरात भी इसको सुन रहे हैं और हमारे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान के लोगों ने एक जमाने से अपने बच्चों को हुफ्फाज और उलमा बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा की तो जो है हिदायत के मुताबिक हमने ये कोशिश की, अब हमारे बच्चे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने। इसलिए कि हमारी कौम को इनकी सख्त जरूरत है। लेकिन कितना ही आप पढ़ाओ, ये भी
याद रखना, जितने उलूम तुम पढ़ा रहे हो सारे उलूम के बाद ये मत कहना कि सबसे भारी मेरा बेटा है, मेरा बेटा डॉक्टर सबसे भारी इसने पढ़ा, मेरा बेटा इंजीनियर सबसे बेहतरीन तालीम इसने हासिल की। तो सुनो कौन सबसे बेहतर है? जो सबसे बेहतरीन हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले, बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को बेहतर कहना चाहे, खुदा की कसम वो नबी की ज़बान पर अपनी ज़बान चलाना चाह रहे हैं, नबी की ज़बान के मुकाबले में बोलना चाह रहे हैं, या वो ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद अल-याज़ु बिल्लाह गलत कहते हैं, हम सच कह रहे हैं। मोहम्मद ने कहा पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन पढ़ने पढ़ाने वालों में कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, वो सबसे बेहतरीन पढ़ने पढ़ाने वाले। इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये जो उलमाए किराम मसनद पे जलवा अफरोज है, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनका मकाम नबी की ज़बान मुबारक से सुनिए, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। हुजूर ने फरमाया एक आलिम की कदर व कीमत एक इबादत गुजार पर फरमाया ऐसे है, फज़लुल आलिमी अलल आबिद, एक इबादत गुजार पर आलिम की फजीलत उतनी है जितनी तुम में से एक अदना दर्जे के मुसलमान पर मेरी फजीलत है। जो मेरा मकाम एक अदना ईमान वाले के मुकाबले में है, वो मकाम एक आलिम का आबिद के मुकाबले में है, वो मकाम एक आलिम का आबिद के मुकाबले में है। अल्लाह हमें उलमा की कदर की तौफीक अता फरमाए। जब सबसे बेहतरीन पढ़ना पढ़ाना मदरसे का है, सबसे बेहतरीन पढ़ना पढ़ाना कुरान का है, तो सीरत से जुड़ जाओ, पहली वही से जुड़ जाओ, पढ़ाना शुरू कर दो, और पहली वही कुरान उतर रही है, कुरान पढ़ाना शुरू करो, तुम भी बेहतर हो जाओगे, तुम्हारी औलाद भी बेहतर होंगी, इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा बेहतर होंगे, जिस जमीन पे पढ़ाया जाएगा वो जमीन बेहतर, जिस माँ का लाल पड़ेगा वो माँ सारी माओं से बेहतर, इस दादा दादी की औलाद पड़ेगी वो दादा दादी सारी दादियों से बेहतर, वो सारे दादों से बेहतर, वो सारे नानों और नानियों से बेहतर, और जिंदे तो जिंदा वो मुर्दे जिनकी औलाद कुरान मकतबों में पढ़ रही है, खुदा की कसम वो मुर्दे कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों से बेहतर। और जब मैदान महशर में खड़े होंगे वो सारे सर लेकर लोग खड़े होंगे, वहां एक शख्स से कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी फ़इन्न मंज़िलका इला आखिरी मंज़िली आयतिन। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा चढ़ता जा चढ़ता जा, और तेरी आखिरी मंजिल वो है जो कुरान की आखिरी आयत है। 6666 आयात, उतनी आयात के मुताबिक तेरी मंजिल है, तू उतने ऊंचे दर्जे को जाएगा। अच्छा जाने लगेगा जाने लगेगा, अल्लाह कहेंगे अकेले जाएगा अकेले जाएगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे मेरे बंदे इधर आ इधर आ। 10 ऐसे लोग हाफिज कुरान से कहा जाएगा, 10 ऐसे लोग जिनके बारे में जहन्नम का ऐलान हुआ, तेरे खानदान के 10 ऐसे लोगों को लेकर के जन्नत में चला जा। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, इंजीनियर हजरात माफ कीजिए, वकाला मुझे माजूर समझे, प्रोफेसर और कलेक्टर वगैरह सब माजूर समझे, आप में से किसी को यह मकाम नहीं है। इन मासूमों को खुदा वो मकाम कल क़यामत में अता फरमाएगा। इनकी मिट्टी की धूल, कायनात की सारी डिग्रियां इनकी धूल में रखी जाए, तब भी खुदा की कसम इनकी धूल की कीमत ज्यादा है तुम्हारी डिग्रियों के मुकाबले में। इनकी धूल में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, इनके कदमों तले फरिश्ते पर बिछाते हैं, इनके लिए कायनात की 18,000 मखलूकात दुआएं करती है, इनके रुतबे को कोई पा नहीं सकता, क़यामत तक पा नहीं सकता। अल्लाह हमें भी कदर की तौफीक दे, आपको भी कदर की तौफीक अता फरमाए। वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाए। कहा जा अकेला जाएगा, अरे 10 लोगों को ले जा, पुकारेगा अब्बू कहाँ है, अम्मी जान कहाँ है, भाई कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मेरे बहनोई कहाँ है, दादा जान नाना जान दादी जान नानी जान, ये 10 को लेकर के जन्नत में जाएगा। एक बच्चा दे दो, 10 को बदले में जन्नत में ले लो। एक बच्चा दे दो मदरसे को, 10 को जन्नत में ले लो। और अगर ये बच्चा आलिम बना, बचपन से सुना है अपने असातिज़ा से, ये बच्चा आलिम बना तो फिर क्या करेगा, 7 खानदानों को जन्नत में ले जाएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह,
सात खानदानों को जन्नत में ले जाएगा। मोहल्ले वालों अपनी किस्मत जगा लो, लाओ मदरसों में तलबा को, बच्चों को, और लाओ मौलवियों के सुपुर्द करो। इनसे कहो कि हमारे बच्चे हम आपके हवाले करते हैं, इन्हें बनाओ, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें हाफिज बनाओ, इन्हें आलिम बनाओ। और याद रखना, ये सिर्फ इतने पे बस नहीं है कि ये खानदानों को जन्नत में ले जाएगा। मौलवी का मकाम तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, ये किसी कब्रिस्तान से भी गुजर जाए तो मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाती है। कितनों को बख्शवाओगे, इल्म दीन से बढ़कर किसका मकाम लाओगे? अल्लाह हमारे सीनों में उस अज़मत को पैदा फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। आओ मदरसे वालों से कहो, ये मेरी झोली चाहे फट जाए, मेरे घर में चाहे फाके पड़ जाए, मेरे यहाँ गरीबी आ जाए, मेरा घर लुट जाए, लुटने दो, मगर इंशाअल्लाह अब हम इस इदारे को लुटने नहीं देंगे, इस इदारे को हम अब बर्बाद होने नहीं देंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, सब कुछ लुटा देंगे इस इदारे पर। यहाँ के बच्चों को हम अपने कंधों से उठाएंगे, इन्हें उठाएंगे, अपने गले लगाएंगे। यहाँ के यतीमों को, यहाँ के गरीबों को हम ऐसे सहारा देंगे जैसे सरकार ने सहारा दिया। आखिरी बात कह के बात खत्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ईद की नमाज के लिए अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। देखा मदीने के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सरकार ने फरमाया, देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा खलवत में बैठे रो रहा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसकी तरफ आए, हुजूर उसकी तरफ आए, और ये मंजर कायनात में देखा जिस पे खुदा का अर्श झुका, मोहम्मद उस बच्चे की तरफ झुक गए, मोहम्मद उस बच्चे की तरफ झुके। फरमाया, बेटे क्या बात है, तुम खेलते क्यों? बच्चे ने कहा, मैं यतीम मदीना हूँ, मैं यतीम मदीना हूँ, इनके बाबा जिंदा हैं, उन्होंने कपड़े बनाए, इनको नहलाया, इनकी नमाज से ईद की तैयारी की, उनके लिए खिलौने लाए, मेरे पास मेरा बाप नहीं है। हुजूर की आंखों में आंसू आए। कुरान ने कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मोहम्मद हमने तुमको यतीम देखा, हमने सहारा दिया। हुजूर झुक गए, मेरे मौला ने मुझे यतीमी में सहारा दिया, मेरे लाल मैं तुझे सहारा दूं। हुजूर ने उस बच्चे से पूछा, बेटे क्या तू इस बात को तैयार नहीं है? क्या तू इस बात को तैयार नहीं है? मोहम्मद तेरा बाप हो, आयशा तेरी माँ हो। वो बच्चा उछल कर हुजूर के गले लग गया। आपने उसको सीने से लगाया, गोद में उठाया, घर ले आए। अम्मी आयशा से फरमाया, आयशा इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, और हजरत हसन का कपड़ा मंगाया जो 6 साल के करीब आसपास इस उम्र के थे, उनका कपड़ा बनाया और इस बच्चे को पहनाया। और उसके बाद सुनो, इतने पे बस नहीं, ये बच्चा उंगली पकड़कर चलने लगा। उंगली खसाइसुल कुबरा में ये वाकया लिखा है, उंगली पकड़कर चलने लगा। हुजूर ने फरमाया, तेरी जगह जमीन पे नहीं, तेरी जगह मोहम्मद के कंधों पर है। आपने उस यतीम को अपने कंधों पे सहारा दिया, यतीम को उठाया, मस्जिद नबवी की तरफ जाने लगे। वो बच्चे जो मदीने में मालदारों के खेल रहे थे, वो उनका चादरें पहने, उनका कपड़े पहने खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा कि हम सब जमीन पे रेंग रहे हैं और ये बच्चा मोहम्मद के कंधों पे बैठा है। और वो बच्चा भी फख्र से कह रहा है, ओ मदीने के मालदारों, दौलतमंदों, सुन लो, मेरा बाप मोहम्मद है, मेरी माँ आयशा है। उस वक्त मदीने के उन मालदारों में से एक बच्चे ने यहां तक कह दिया, काश आज मेरा बाप ना होता, मैं मोहम्मद के कंधों पर होता। मोहम्मद ने यतीम का मकाम बयान कर दिया। और फिर आप मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर बैठे, बच्चा नीचे बैठने लगा, आका झुके, मिंबर से नीचे उतर गए, उस यतीम को उठाया, अपने पहलू में बिठाया, और फिर फरमाया, उसके सर पे हाथ फेरते हुए, बेटे तेरी जगह मोहम्मद के कदमों में नहीं, मोहम्मद के पहलू में है, मोहम्मद के पहलू में है। और सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, यतीम के सर पर भी कोई शफकत का हाथ फेर दे, जितने बाल उसके हाथों तले आए, उतनी नेकियां अल्लाह उसके नामे आमाल में लिख दे। मदरसों के यतीमों को गले लगाओ, कहो कि इंशाअल्लाह मैं एक यतीम बच्चों को हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं एक यतीम को आलिम दीन बनाऊंगा, लेकिन इस नीयत से नहीं कि मदरसे को तुम यतीम समझो, हरगिज़ नहीं। ये मत समझना मदरसा हमारा मोहताज है, खुदा खबरदार रहना, मदरसे तुम्हारे मोहताज नहीं, तुम मदरसों के मोहताज हो। अगर ये मदरसा नहीं तो बस्तियां यतीम हो जाएंगी, अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो हमारी कौमें मुर्तद हो चली जाएंगी।
یہ ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے، ہمارے قرآن کے، ہمارے روایات اکابر کے امین ہیں، محافظ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا نام و نشان زمانے میں نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی حفاظت ہو، ہماری نسلوں کی حفاظت ہو، ہماری بیٹیوں کی حفاظت ہو، ہمارے دین کی حفاظت ہو، پوری بستی کو ایک جان ہو کر کے اس ادارے کو انشاءاللہ چمکانا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ، طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ، وہ دودھ بھی کافی ہے اگر دل پر اثر کرے۔ وما علینا الا